اب آگے کی بات بتا رہے ہیں. وہ قادیان میں تمام پیشن گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور سچی پیش گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی. قلم سے قلم سے قلم سے قلم سے تصدیق کرنا. قادیان آ کر قلم سے رد کرنا ہے, قلم سے, منہ سے نہیں. لفظ قلم, قلم تحریر لکھنی ہوگی, آ کے یہاں پر تحریر لکھنی ہوگی, مجمع گفتگو نہیں کرنا ہوگا. دوسرا, اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے. اگر تیار ہو جائیں. کیا تیار ہوئے تھے؟ 2. کیا قلم میں لکھے تھے؟ قلم سے 2. یہ ہو گیا. تیسرا, اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدے کے مقابلے سے عاجز رہ کر جل تر ان کی روح سیاہی ثابت ہو جائے گی. وہ قصیدے کا جواب لکھا تھا, 5 دن کے اندر آئے تھے, قلم سے تمام پیشگوئیوں کو رد لکھا تھا. کیا تیار ہوئے تھے کہ کاذب سچے کی زندگی میں مر جائے گا؟ یہ سوالات نوٹ کیجئے. اور چونکہ ان دنوں میں مولوی محمد حسین نے سائیں مہر علی گولڑی کی علمیت کی اپنے اشاعت السنہ میں بہت ہی تعریف کی ہے, اور علی حائری صاحب شیعہ اپنی تعریف میں پول رہے ہیں, اس لیے میں ان کو بھی اس مقابلے کے لیے بلاتا ہوں. کیا آئے ہیں؟ اچھا. گالیاں دینے اور ٹٹا کرنے میں ان لوگوں کی زبان چالاک ہے, لیکن اب میں دیکھوں گا کہ خدا سے ان کو کس قدر مدد مل سکتی ہے. میں نے ان لوگوں کی نسبت بھی اس قصیدے میں کچھ لکھا ہے تا ان کی غیرت کو حرکت دوں. یہ ایک آخری فیصلہ ہے. شیعہ حسین سے مدد لیں اور گولڑی صاحب کسی اپنے ختم شد. جواب دیجئے کشتوں میں آہستہ آہستہ. یہ جو پیش کیا گیا تھا آپ کے سامنے آ گئی. وہاں یہ لکھا ہوا ہے عامر رضی صاحب کے پہلے قصیدے کا جواب دے دیں 5 دن کے اندر. اگر دے گیا تو میں جھوٹا ہو کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ چیلنج ہے, یہاں آ کے اپنے قلم سے تمام پیشگوئیوں کی چاند پڑتال نہیں کریں گے. تیسرا, جو سچا ہوگا جھوٹا اس کے زندگی میں مر جائے گا. کیا یہ تمام باتوں کو قبول کیا گیا یا نہیں؟ بتائیے کشتوں میں. اچھا, میں ابھی آیا ہوں, آپ کو مجھ سے تو نہیں بات کر رہے تھے؟ اور بہت سخت سوالات میں نے کیے ہیں, جواب دینے کی کوشش کیجیے. اچھا بتائیں سوال. پھر بتا دوں. اللہ, میں کہہ کے گیا تھا چوہان صاحب کو کہ میں نیچے جا رہا ہوں, تھوڑی دیر میں آتا ہوں, آپ دوبارہ بتا دیں. میں نے ایک بھی بات آپ کی نہیں سنی. چوہان صاحب بتا دیجیے میں نے کیا کہا ہے, پڑھ دیجیے. وہ آپ بتا دیں مجھے سوال. ایک سوال کے کون سا میوٹ لگائیں, آپ کی تار خراب ہے, آواز بہت شور آتا ہے. بھائی سوال تو بتائیں نا, میں کون سے سخت سوال پہ رس کرنے بھائی نے کیا, میں دیتا ہوں جواب. کیسر بھائی بتا دیجئے, وہ جو اسکین پیش کی گئی تھی شدمت کے ساتھ, اس کا تکہ بوٹی ہو چکا ہے, ذرا بتا دیجئے جلدی سے. عامر نذیر بھائی, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک تو یہ سوال اٹھایا ہے کہ مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ مرچی صاحب کو کوئی رحم اللہ کو ایک قصیدہ لکھنے کے لیے کہا تھا, تو کیا انہوں نے لکھا تھا؟ نمبر 1.
نمبر 2 یہ جو آپ نے عبارت پڑھی تھی نا کہ وہ قادیان میں تمام پیشن گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور سچی پیشن گوئیوں کی اپنے قلم، تو یہ قلم یہاں پہ زاہد اسکانی صاحب محترم جو ہیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ منہ سے بولنے کی تو بات ہی نہیں ہے، قلم سے تصدیق انہوں نے کرنی تھی، تو کیا وہ کی یا نہیں کی، ان کے لیے موت ہوگی۔ اور آگے وہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو کاذب کی صادق کے پہلے مر جائے گا تو کیا مولانا ثناء اللہ مرسی رحمہ اللہ کیا وہ اس پہ تیار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ یہ سوالات اٹھائے ہیں محترم اسکانی محترم صاحب۔ نہیں، یہ تینوں باتوں کا جواب تو میں نے پہلے دے دیا ہے کہ ایک تو ہے یہ جو ہے نا جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے گا، یہ تو نری جہالت ہے، اس کو تو ہم نہیں مانتے، نہ مولانا ثناء اللہ امرتسری مانتے ہیں نہ میں یہ درست تو مانتا ہوں۔ اچھا، یہ تو آپ نہیں مانتے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مناظرے کے پاداش میں مرے ہیں؟ ہاں، جی بات۔ وہ جو 15 اپریل 1907 کو انہوں نے اشتہار چھاپا تھا نا، اصل میں انہوں نے مرزا صاحب نے وہاں پر کوئی مباہلہ وغیرہ نہیں کیا، وہ مباہلے کی تحریر نہیں تھی۔ ہاں، اگر آپ ان معنوں میں کہیں کہ جس طرح مرزا صاحب لوگوں کی تحریروں کو مباہلے کا نام دیا کرتے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یک طرفہ مباہلہ کیا تھا، لیکن وہ مباہلہ نہیں تھا۔ دراصل مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے اس اشتہار میں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں، یہ وحی یا الہام کی بنا پر کوئی پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے میں نے فیصلہ چاہا ہے۔ جو دعا مرزا صاحب نے کی ہے، اس دعا کے بعد مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ اچھا، میں وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، پہلے کیا یاد کریں گے۔ وہ دعا یہ ہے پیر اسکانی بھائی، جو دعا مرزا صاحب نے کی ہے نا، یہ رہی وہ دعا۔ یہاں پر کچھ سگنل کی پرابلم ہے، اسکین نہیں کھل رہا۔ ہاں، مجھے 1 منٹ نیچے جانا پڑا، میں آ کے بتاتا ہوں آپ کو دعا کے الفاظ۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکایت کرنے آئے میرے بروڈ کا بھائی جان؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ، میں صبح بھی عرض کر رہا تھا، اصل میں مائک زبردستی چھیننا پڑ رہا ہے، یہ آپ کی براڈ کا کبھی بھی ماحول نہیں رہا۔ آج صبح کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات نہیں کر رہا، ہاں، کہ آپ موقع دیا کرتے تھے، آپ ساتھیوں کو کہا کرتے تھے جو شرکائے گفتگو ہیں کہ جناب 1 منٹ، فلاں 2 بندے نئے آئے ہیں تو ان سے کچھ نہ کچھ سلام دعا کر لیں، تو وہ بندہ ایسے بیٹھے بیٹھے چلا ہی نہیں جاتا، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ بندہ ایک دم سے کوئی بول پڑے، اور پھر جب وہ بولے سلام دعا کے لیے بے شک تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ہی ہو تو برا بھی مان جانے میں یہاں ہے نظام کے جناب آپ بولے کیوں ہیں۔ تو آپ کیا پیر صاحب دباؤ کا شکار ہیں کہ آپ نے جو اچھا طریقہ کار شروع میں جو اپنا کیا تھا اس سے آپ تھوڑا سا ہو گئے ہیں، یا وہ بھول گئے ہیں، یا آپ بھی جس طرح عوام چل رہی ہے ان کے ساتھ ہی چل پڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ جی، اصل میں نے آپ کو دیکھا تھا اور دل ہی میں آپ سے سلام دعا میں نے کی تھی۔ بہت شکریہ جی، چلیں، دل میں آپ نے سلام تو وعلیکم السلام پیر صاحب، آپ نے دل میں سلام کا میرے جواب دے دیا، بہت مہربانی۔ نہیں، آپ نے اونچا جواب نہیں دینا احمد علی بھائی، دل میں ہی دینا ہے۔ بھائی جان، میں نے آپ کو دیکھا تھا اور دل میں نے آپ سے سلام دعا کی تھی، مطلب استعارہ کے رنگ میں آپ سے جو ہے میں نے پوچھ لیا تھا
جی جی خیر خیریت آپ کی، اور بہت دل شکریہ۔ بڑا باغ باغ ہوا آپ کو دیکھ کر کہ آپ سلامت ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اور دوسری میں نے ایک دو گزارشات آپ سے کی ہوئی ہیں، تو یہاں اگر دن رات ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے ہی بھائیوں کو یا مخالفین کو یا جو بھی کہہ لیں، بھجن ہم نے تو اور کوئی وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، اپنی براڈ چلا رہے ہیں، تو نہ نہیں ہوا، یہاں پہ ہم نے کرنے دیا ہی نہیں۔ نہیں آپ کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کی یہاں اس براڈ کی میں بات نہیں کر رہا، میں ٹک ٹاک کی براڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ بھی براڈ چلا کے دن رات چل رہے ہیں اور وہ اپنا میدان جہاں بھی جو جس طرح بہتر سمجھتے وہ کر رہے ہیں، تو پیر صاحب کی براڈ سے کسی کو کیا مخالفت ہو سکتی ہے؟ صرف یہ کہ وہ اپنا حسد یا اپنا بغض یا کچھ ایسے نکالیں۔ دین متین کی خدمت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو طلاق کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ جاری رکھیں، کیونکہ اب میں نے تو اپنی قبر میں کسی کو نہیں آنے دینا، نہ کوئی ممکن ہے مجھے آنے دے گا، اور ایسا ہی ہے۔ تو کیوں ایک دوسرے کے اوپر ہم یہ سختی کریں کہ جناب یوں کر لو اور یوں کر لو؟ ٹھیک ہے، میں اپنا پھر بعد میں ڈرائیو کروں گا، یہ سن لیں جی الفاظ، اجازت ہے؟ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے، محض دعا کے طور پر، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد کا ایک معنی حرام زادہ بھی ہوتا ہے بقول معلم صاحب، اگر میرا یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا لمبی دعا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے، یعنی حرام زادہ اور جھوٹا ہے، اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو اس کو مبتلا کر دے۔ اے میرے پیارے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، آمین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میری اس دعا کو، میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچے میں، اپنے رسالہ اہل حدیث امرتسر میں چھاپ دیں، اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ یہ دعا کی تھی مرزا صاحب نے، محض دعا کے طور پر مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ مانگا، اور یہ کہا کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کو کہتا ہوں کہ اپنے رسالے اہل حدیث امرتسر میں اس کو چھاپ دو، پھر اس کے بعد جو چاہے اس کے نیچے لکھ دو، اب فیصلہ تو خدا کے ہاتھ میں، کیونکہ میں تو خدا سے فیصلہ مانگ رہا ہوں۔ چلو جی، فیصلہ مانگا مرزا صاحب نے، 13 مہینے تک مرزائی انتظار کرتے رہے اس دعا کا نتیجہ آ جائے، یا اللہ دعا کا نتیجہ آ جائے۔ جس طرح عبداللہ آتم کے لیے 15 مہینے مرزائی دعا کرتے رہے، یا اللہ عبداللہ آتم مر جائے، یا اللہ عبداللہ آتم مر جائے، ایسے ہی 13 مہینے تک 15 اپریل 1907 سے لے کر 26 مئی 1908 تک مرزائی دعا کرتے رہے، یا اللہ فیصلہ کر دے، یا اللہ فیصلہ کر دے، یا اللہ۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے چک 26 مئی 1908 کے دن صبح 10 بجے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو اٹھا لیا اور یہ فیصلہ کر کے دکھایا کہ جب تو کہتا ہے کہ جو مفسد اور کذاب ہے تیری نگاہ میں، اسے سچے کی زندگی میں ہی موت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، مرزا صاحب کو موت دے دی 26 مئی 1908 کو۔ اب ہوا کیا جی؟
क्या दूसरा जो टुकड़ा है अहमद अजीज साहब, क्या इसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने मुबाहला कर दिया और वो दुआएं अपने आप पर खीं, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि नीचे आप भी करेंगे, ये है शर्त। क्या ऐसा नहीं है? अगर तो ऐसा कहा होता कि नीचे आप भी लिखेंगे इसी तरह की दुआ आप भी करेंगे बदले में, फिर मौलवी सनाउल अमृतसरी पर फर्ज था कि वो लिखते, ऐसे ही दुआ लिखते, या उसको मुस्तरद कर देते तो मिर्जा साहब कहते कि ठीक है अब मुस्तरद हो गई है। लेकिन मौलाना सनाउल अमृतसरी को तो मिर्जा साहब ने कहा है कि जो चाहे इसके नीचे लिख दो, जो चाहे, तो इसको मुस्तरद कर दो, इसको कबूल कर दो, जो चाहे इसके नीचे लिख दो, फैसला खुदा के हाथ में चला गया। नहीं, जो चाहे से मुराद ये नहीं है, जो चाहे से मुराद ये है कि आप जिस तरह, उससे मुराद ये है कि चैलेंज के जवाब में जो चाहे आप लिखो, यानी मुबाहले के अल्फाज आपके कुछ भी हों, बद्दुआ के कुछ भी हों, किसी भी शक्ल में हों, वो लिखो। नहीं, पहली तो बात यह है कि ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुबाहला, ये मिर्जा साहब को इस्तेमाल करना आता था। मिर्जा साहब ने ये लफ्ज जा बजा अपनी किताबों में लिखा हुआ है, मुबाहला मुबाहला मुबाहला। हमारे साथ जितने मुबाहले के लिए आए सब हलाक हो गए। मिर्जा साहब को मुबाहला लिखना आता था। इस पूरे मजमून में जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये शैतान की आंत से लंबा इश्तिहार है, बकौल मौलाना सनाउल अमृतसरी के, उनके अल्फाज हैं कि शैतान की आंत से लंबा ये इश्तिहार। इसमें मिर्जा साहब ने लफ्ज मुबाहले का कहीं नहीं लिखा। अभी रुक जाएं, अभी रुके जरा, एक मिनट सुने नहीं, सुन तो लीजिए, मैं बात को समझना चाहता हूँ ना भाई। ये जो आप पेश कर रहे हैं दुआ, ये रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 148 एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ुल मसीह, ये बाद में लिखी गई है या ये पहले है या वो पहले है, ये बताइए। नहीं, जाज़े अहमदी पहले लिखी गई। पहले लिखी गई, तो पहले लिखी गई, उसका जवाब क्या है? एजाज़े अहमदी का जवाब क्या है? नहीं, एजाज़े अहमदी का जवाब तो वरूद कादियान है। नहीं भाई देखो, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि मौलवी सनाउल अमृतसरी वाज और कफन के पैसों पर गुजारा करता है, हजारों निशान नहीं देखता। एक मिनट, मैं जाज़े अहमदी के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। आमिर भाई, मैं जो इबारत आपने पेश की, जिसने तबसरा किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पूरे। सलाम अलैकुम। कौन सी बात मैंने जाज़े अहमदी की पेश की? रूहानी खजाइन जिल्द 19 148 एजाज अहमदी ज़मीमा नज़ुल मसीह, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने ये इश्तिहार पढ़ के सुनाया है। जाज़े अहमदी की इबारत पढ़ के सुनाए हुए तो मुझे 15 मिनट गुजर गए, वो तो पीछे चलेगी बात। तो बात तो उसी का कर रहा हूँ ना। अच्छा, कौन सी इबारत मैंने पढ़ के? उसमें यह है कि मौलवी सनाउल्लाह साहब और उनके रफीकों को नाहक के इफ्तराओं की हाजत नहीं रहेगी। अब ये चैलेंज है देखो, और मुफ्त में उनकी फतह हो जाएगी, वरना हाँ वही तो, सुन तो लीजिए, कैसे सुन लीजिए ना, वो बात बता रहे हैं कि क्या करना होगा, और वो सच्चे और खुद को झूठा वो कह रहे हैं। मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, तुम लोग सच्चे होगा। फिर कभी मुझे झूठा कहें या मेरे निशानों की तकज़ीब करें। आगे लिखते हैं, देखो मैं आसमान और ज़मीन को गवाह रख कर कहता हूँ कि आज की तारीख से इस निशान पर हसर रखता हूँ। हसर, समझ रहे हैं? हसर, अगर मैं, यानी सिर्फ ये इस निशान पे, सिर्फ इस निशान पे अगर मैं सादिक हूँ और खुदा ताला जानता है कि मैं सादिक हूँ, तो कभी मुमकिन नहीं होगा कि मौलवी सनाउल्लाह और उनके तमाम मौलवी 5 दिन में ऐसा कसीदा बना सकें और उर्दू मजमून का रद्द कर सकें। अब ये है, एक ये है, क्या ये कसीदा का जवाब दे दिया गया 5 दिनों के अंदर? इसकी जो शर्त लगाई है कि 5 दिनों में आपने जवाब देना है, मिर्जा साहब की क्या गारंटी कि मिर्जा साहब ने 5 दिन में कसीदा लिखा था? मिर्जा साहब वो इशारा भी दे रहे हैं कि मुद में, अगर तुम लोग ये कहोगे कि मैंने ये पहले लिखा है, तो तुम जान जाओ कि मुद का भी जिक्र उसमें है। मुद का जिक्र है, हाँ, लेकिन जो बाकी अशार हैं,
हाँ मुद के बाद ये लिखी गई है। मुद भाई पहले हुआ पीर है। अस्कानी भाई, मैं बताता हूँ, जी मुद के जो वाक्या है उसके अशार बीच में ऐड करके कसीदा तो बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें उसमें शेख बटालवी के बारे में लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई जिनका मुद से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सारा कसीदा, एक मिनट, वो सारा कसीदा जो कई सफहात पर मुश्तमिल है, वो मिर्जा साहब ने मुद के मुनाजरे के बाद लिखा था। इसका क्या सबूत है? मुद का जिक्र है उसमें ना। जिक्र 2-4 अशार में है, वो अशार बाद में डाल दिए होंगे। कसीदा पहले से 90% कसीदा पहले से लिखा हुआ था, 10वां हिस्सा लिख के उसमें डाल के कसीदा छाप दिया और कह दिया मैंने 5 दिन में ये कसीदा लिखा है। हम कैसे माने आपने 5 दिन में लिखा है? ये तो गुमान है ना। गुमान ही है ना आपका। कह सकते थे नहीं मुझे 10 दिन चाहिए, 10 दिन में लिख लेते थे। हाँ ये क्या ये कोई ये मेरे चौहान साहब, ये पहले ये बताएं कि कसीदा लिखना ये फतह और शिकस्त की कोई है दलील? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने तो कहा है मुझे अल्लाह ताला ने ये दिल दी। अल्लाह ताला ने, आप बता दें कि अगर आपका भाई अल्लाह मौलाना के ताल्लुक सनाउल, है, आप लिख दें। हम मौलाना सनाउल अमृतसरी का ये दावा नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला वही करता है और मैं कसीदे लिखता हूँ अल्लाह ताला की वही से। हाँ, आप इसका एक मतलब MBBS है, इसका मतलब है कि मिर्जा साहब का फिर अल्लाह ताला से ताल्लुक था, मौलवी सनाउल्लाह का नहीं था। नहीं, ये तो कोई दलील नहीं है, ये तो कोई दलील नहीं हो है। गई ना फिर। कैसे दलील हो गई? उन्होंने कहा ये हसर, खोला ही नहीं है। उन्होंने कहा है, इसको बुनियाद बनाई है। कल से मैंने खोला ही नहीं है, तुमने सुने। साफ किया था, नहीं खोला था। ठीक है, रेस्ट कर लो। अगर एक बंदा 3 महीने में कसीदा लिखता है, 3 महीने में, उसके बाद मुनाजरा वो हो जाता है, मुद्द में मुनाजरा हो जाता है कि कुछ बातें भी ऐड करके उस कसीदे में डाल के कसीदा छाप देता है। वो कहता है जिस तरह मैंने 5 दिन में लिखा तुम भी लिख के दिखाओ। भाई ये क्या शर्तें हैं? ये शर्तें हैं आपकी सच्चाई की, ये दलीलें हैं। ये क्या है? सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये एतराज किया था मिर्जा साहब जो आप कर रहे हैं, अस्सलाम कौन सा? वालेकुम। ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपने 5 दिन में नहीं लिखा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या अस्सलाम। उन्होंने हाँ हाँ कहा था? बिल्कुल लिखा था। अच्छा एक मिनट मैं जितनी बात बोलता हूँ चौहान साहब, मैं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की बोलता हूँ। हाँ मैंने साहब उसने ये कहा था कि 5 दिन में आपने नहीं लिखा, इसलिए हाँ। मैं 5 दिन में नहीं लिख सकता, मुझे ज्यादा वक्त चाहिए। नहीं, ज्यादा वक्त का नहीं, उन्होंने कहा ये झूठ है कि आपने ये 5 दिन में लिखा है। इसका क्या सबूत है कि आपने 5 दिन में जवाब कसीदा में फिर कहना चाहिए था ना जी मुझे महीना चाहिए। नहीं, ये तो कोई तुक नहीं बनती ना। एक बंदा, चौहान साहब, बंदा आपको चैलेंज कर रहा है कि आप 5 दिन में लिखे, मैंने 5 दिन में लिखा है। आप कहते हैं मैं 5 दिन में, मैं 30 दिन में लिखूंगा। क्यों? आप तो पहले शिकस्त लिख के दे रहे हैं। वो कहता है मैंने 5 दिन में लिखा है, आप कहते हैं मैंने 30 दिन में लिखना है। क्यों ऐसी बंदा बचगाना बात करे? वो मुनाजर है, वो रोटी को चोची कहते थे। बात इसमें क्या है भाई, आप अगर समझते हैं कि ये कसीदा कोई है इस तरह का कि इस तरह का कसीदा लिखना कोई खास काम नहीं है, तो फिर उनको लिखने में क्या एतराज था जबकि वो बुनियाद उसको बना रहे हैं, तो फिर उनको क्या एतराज था ना लिखने में? हद हो गई है। मैं हाँ, अर्ज कर इस रहा तरह का हूँ तो मैं भी लिख सकता हूँ। चौहान साहब, अच्छा पहली बात तो ये आमर नज़ीर भाई, ये तारक चौहान साहब को मैं चैलेंज देता हूँ और बल्कि मैं दावा भी कर देता हूँ कि मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वत बख्शी है 24 घंटों में कुरान पाक बगैर गलती के पढ़ना। मैं इनके जंबा साहब को चैलेंज देता हूँ कि अगर उसका खुदा के साथ ताल्लुक़ है तो मेरे साथ चलो ऑनलाइन ही आ जाए, 24 घंटों में पूरा कुरान पाक बगैर गलती के पढ़ के सुना दे। जो सही सुना देगा बगैर गलती के वो सच्चा होगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जंबा साहब नहीं सुना पाएंगे। करते हैं जी ये चैलेंज कबूल। जो बात हो रही है उस पर रहें, ऐसी इधर भी तो इसी तरह का चैलेंज है नहीं जिसको आप कह रहे हैं कि हाँ ये दलील है, हाँ ये है। उन्होंने एक चैलेंज किया है, उन्होंने एक तहरीर भी लिखी है, उसका चैलेंज। और जंबा साहब के साथ आपने करना है, जंबा साहब का तो ये है ही नहीं, उन्होंने कहाँ का है ये बात। तो उधर भी तो दूसरे बंदे का नहीं था ना, फिर आप मैं पढ़ के सुना सकता हूँ ऑनलाइन, ऐसी फजूल बात है ये भाई। जो बात हो रही है उसके मुतल्लिक बात करें। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कब चैलेंज किया था कि मैं कसीदा लिख सकता हूँ? कहाँ चैलेंज किया था? भाईजान बात सुन लीजिए। बात खराब हो गई है, आप लोगों ने बात खराब कर दी है। बात को खराब मत कीजिए। सवाल ये है क्या वो कसीदा लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा, बस खत्म। नहीं लिखा। कसीदे का चैलेंज ना था, ना कबूल किया गया। नहीं लिखा, ठीक। आगे सुन लीजिए।
आगे ये है कि आगे क्या है, अगर मैं पहले बताता, अगर ये अगर मैंने पहले जी देखो वो कलम के साथ वो हाँ अभी आगे सुन लीजिए ना, आगे कसीदा नहीं लिखा गया, इस पे ये शक आ गया कि इन्होंने ये पहले 10 साल पहले लिखी हुई है, मुद का वाकया पहले बाद में पेश आया, यानी 10 साल पहले ये जानते थे कि मुद का वाकया होने वाला है, इसलिए मुद का जिक्र उन्होंने पहले से कर दिया। पीर असकानी भाई मुद के वाकये का जिक्र सिर्फ चंद शेरों में है, कसीदा 20 सफ़ों पर मुश्तमिल है, जो चंद अशार मुद के हैं उनका बाकी के कसीदे से कोई लेना देना नहीं है। कसीदा आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा सुन तो लीजिए, अब इतनी बात हो गई कि इसको इसलिए रद्द कर दिया गया, यही तो कह रहा हूँ ना कि ये पहले लिखा गया है। हाँ 3 महीने पहले का लिखा हुआ। हाँ। अच्छा ये इसलिए रद्द हो गया। आगे सुने, वाज़ेह रहे कि मौलवी सनाउल्लाह के जरिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे, यानी वो सबब कौन है, मेरे निशानों को ज़ाहिर करने वाले मौलवी सनाउल्लाह हैं। किस शक्ल में होंगे, वो कह रहे हैं वो कादियान में तमाम पेशन गोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगिज़ नहीं आएंगे और सच्ची पेश गोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना, एक मिनट, तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। अब बताइए क्या वो कादियान गए थे? जी गए थे। अपने कलम से तमाम पेशन गोइयों को रद्द किया था? अगर वो नहीं, पेशगोइयों की तस्दीक करनी थी, झूठा नहीं कहना था। ना मिर्जा साहब ने क्या लिखा हुआ है? जांच पड़ताल के लिए सुन लीजिए मौलवी सनाउल्लाह के जरिए से अनकरीब 3 निशान मेरे ज़ाहिर होंगे। पहला, वो कादियान में तमाम पेशगोइयों की पड़ताल के लिए मेरे पास हरगिज़ नहीं आएंगे और सच्ची पेशगोइयों की अपने कलम से तस्दीक करना उनके लिए मौत होगी। तो सच्ची कोई होती तो उसकी तस्दीक करते ना। अच्छा गए थे वो भजन गए तो थे ना पड़ताल करने के लिए। कलम से रद्द किया था भाईजान, रद्द करने का तो उनको कहा ही नहीं गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा उनको कहा गया कि सच्ची पे सुने अब आप वो बंद करें 1 मिनट मोबाइल जहां से आप पढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके मेरी बात का जवाब दें। सच्ची पेशगोइयों की पड़ताल करना उनके लिए मौत होगी। भाई सच्ची है ही नहीं तो पड़ताल वो कैसे तस्दीक करेंगे? तो फिर गए क्यों थे? आप कह रहे हैं पड़ताल करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए नहीं, पेशगोइयों की पड़ताल करने के लिए। पड़ताल करने के लिए कलम से किया था? पड़ताल कलम से तो नहीं ना होती, पड़ताल तो गुफ्तगू से होती है। भजन शर्त तो यही था कि कलम से वो करें। नहीं, कलम से तस्दीक करने का। सुने से ये इबारत का मफहूम ये है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अपनी कलम से कभी भी तस्दीक नहीं करेंगे कि मिर्जा साहब की फलां पेशगोई सच्ची साबित हुई है। तो कभी भी नहीं किया ये बात। अगर ऐसा लोगे तो तब भी सच्ची होगी उसकी बात, कभी भी तस्दीक नहीं किया। हाँ तो जो मिर्जा साहब को पता है मेरी सारी झूठी है, वो कभी भी सच्ची नहीं कहेगा। तो फिर आप ये तो ठीक है कि वो ये तो मिर्जा साहब का निशान सही हो गए। अच्छा भजन, आप ये कहते हैं कि वो गए थे फिर उन्होंने बात नहीं की, फिर ये क्यों कहते हैं कि वो भाग गए थे मुनाजरा से? नहीं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी गए थे पेशगोइयों की पड़ताल के लिए। हाँ, जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा था कि पेशगोइयों की पड़ताल के लिए कादियान आए, पेशगोइयों की पड़ताल के लिए वो आए। ये तहरीर है, एक और भी तहरीर है इजाज़ अहमदी की, उसमें उन्होंने कहा एक पेशगोई के लिए मैं इसको 100 रुपया इनाम दूंगा। कान इधर से पकड़ेंगे या इधर से पकड़ेंगे, बात वही होगी। कलम से उन्होंने तस्दीक नहीं की। अगर आप तस्दीक का भी बताता हूँ ना, तस्दीक पर आप अड़ गए, तस्दीक का मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं तो आपके साथ ये कह रहा हूँ। नहीं, बात ये है उन्होंने चैलेंज ये किया, कसीदा लिखो, नहीं लिख सके। दूसरा ये कि यहाँ नहीं आएंगे और अपने कलम से तस्दीक नहीं करेंगे। चले तो गए, लेकिन कलम वाला हिस्सा कहा कि नहीं मैं तो तकरीर करूंगा, क्या तकरीर करने नहीं दूंगा, मैंने तो कलम का कहा है।
ये नीरज अब खान आगे भाई, चलते हैं, अगर आगे चलिए नहीं प्लीज। नहीं नहीं, इसको क्लियर हो लेने दें, फिर आगे चलेंगे। जी कीजिए। जो सच्ची पेशगोइयां हैं मिर्जा साहब की, उनकी तस्दीक करनी है कलम से। मिर्जा साहब की कोई पेशगोई सच्ची थी? कादियान गए सच्चे तो उन्होंने तस्दीक की। मैं कह रहा हूँ कोई तस्दीक तो सच्ची पेशगोई की करनी थी ना। सच्ची कौन सी थी जिसकी तस्दीक करनी थी? तो फिर भाई उन्होंने कबूल ही नहीं किया ना, वैसे किया ही नहीं। नहीं, वो तो गए थे देखने कि अगर कोई सच्ची है तो मैं उसकी तस्दीक करूं। हाँ। उन्होंने कहा सच्ची है ही कोई नहीं, सच्ची है ही कोई नहीं, तस्दीक का करनी, सारी झूठियां निकली हैं। लेकिन यही दावा था कि वो कभी तस्दीक नहीं करेंगे, तो नहीं किया ना। भाई बात तो सही हो गई। हाँ, ये बात सही हुई है कि मिर्जा साहब को पता था कि मेरी सारी पेशगोइयां झूठी हैं, किसी को भी सनाउल्लाह अमृतसरी सच्ची नहीं कहेगा। तो ये ठीक सच्ची निकली नहीं। उनकी, मिर्जा साहब का ये निशान जाहिर हो गया है। सारी निशान ये भी, अच्छा ये भी सही साबित हुआ। दूसरा कसीदा भी नहीं लिखा गया, कसीदा भी नहीं लिखा और ये तस्दीक भी नहीं की, क्योंकि पेशगी सच्ची थी, कोई नहीं तस्दीक इसकी करते। और ये देखिए आगे दूसरी, अगर इस चैलेंज पर वो मुस्तैद हुए कि काजिब सादिक के पहले मर जाए तो जरूर पहले मरेंगे, क्या इसको कबूल किया था? हाँ, इसका जवाब दिया था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने। क्या कहा था कि मैं कबूल करता हूँ सादिक की जिंदगी में झूठा मर जाएगा? इसका जवाब ये दिया था, रसूल कादियानी की रसालत जहालत है, जहालत है, जहालत। हाँ, झूठा गोया सच्चे तो- की जिंदगी में, झूठा सच्चे की गोया तो जिंदगी में नहीं- मरता गोया है। तो तैयार नहीं हुए थे ना भाईजान इस पे। सुने तो सही ना, झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है, ये अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि हमेशा झूठा सच्चे की जिंदगी में मरता है? बिल्कुल ये बात नहीं है। फिर तो वो क्या करते, कबूल कर लेते इसको कि हम में से जो झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। तो फिर आप क्यों दलील दे रहे हैं कि झूठे की जिंदगी में सच्चा मर गया, सच्चे की जिंदगी में झूठा मर गया? हाँ, अब रह जाती है ये वाली बात कि हम क्यों दलील देते हैं। वो तो मैंने आपको अर्ज किया है कि हम सच्चे की जिंदगी में मरे या सच्चा झूठे की जिंदगी में मरे, ये कोई मयार नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कोई मयार बयान नहीं किया, ये होगी बात अलग। अब आए इस बात पर कि हम क्यों कहते हैं कि मिर्जा साहब झूठे थे, वो सच्चे की जिंदगी में मरे हैं। इसलिए कि मिर्जा साहब ने दुआ की है कि या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ, अल्लाह ताला से कहा है या अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ मुझे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की जिंदगी में मार दे। ये दुआ रंग ले आई है, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया कि चलो ठीक है। अबू जहल ने भी फैसला मांगा था जब मक्का से निकलने लगे थे बदर के दिन, तो अबू जहल ने भी खाना काबा की चौखट पकड़ कर कहा था या अल्लाह अगर हम झूठे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों आज हमें कत्ल करवा दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ही हमें कत्ल करवा दो उनके हाथों। लेकिन अगर हम सच्चे हैं और उन्होंने ये रिश्तों में दरारें डलवा दी हैं, चाचा भतीजे ना लड़न जा रहे हैं, प्यो पुत्र नाल जा रहे हैं, भरा भरा नाल जा रहे हैं, तो आज उनको हमारे हाथों कत्ल करवा दे। दुआ की थी ना अबू जहल ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सूरह नफाल में क्या आता है, वाइन तस्तफ्ते हु, जी अगर तुम इस्तफ्ता कर रहे थे, तुमने इस्तफ्ता किया, तुमने सवाल किया, ये रहा फतवा, बिल्कुल ये आ गया फैसला अल्लाह ताला। बिल्कुल। अब सुन लीजिए, थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। वहाँ नबी अलैहिस्सलाम भी आमादा हो गए थे, समझ रहे हैं, पूरे लश्कर लेकर उनके सामने गए थे, वो भी आ गए थे। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने भी दुआ की काबा को पकड़ पकड़ के, फैसला आ गया। यहाँ तो एक तरफ जो है बिल्कुल वो मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं है, तो दोनों का एक जैसा मैार कैसे हो सकता है बताइए? नहीं, देखिए सुने, जब अबू जहल ने मक्का से निकलते हुए ये दुआ की थी, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम का आमादा होना या गैर आमादा होना, इसका कोई लेन देन नहीं इस बात का। नबी पाक को तो पता ही नहीं कि वो क्या दुआ कर रहा है वहां से निकलते हुए। नबी पाक को तो इस बात का इल्म नहीं था। वो तो अपने तौर पर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ये 313 अगर तू चाहता है कि ये मार दिए जाएं, अगर तू चाहता है कि दुनिया में तेरा नाम कोई ना ले, तो फिर ये आज 313 मरवा दे, फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा। तो ये नबी पाक तो अपने तौर पर दुआ कर रहे थे। अबू जहल ने जो दुआ की है वो एक फैसला मांगा है, नबी पाक ने जो दुआ की है वो दुआ और है, अबू जहल की दुआ और है। अबू जहल फैसला तलब कर रहे हैं, कहता है अगर हम झूठे हमें उनके हाथों कत्ल करवा दे।
नबी पाक ने इस तरह की दुआ नहीं की। नबी पाक ने कहा नबी या अल्लाह, देखें भाई, दुआ एक जैसे नहीं होते। नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की कि अगर आज ये दज्जालों के हाथों मेरी जो ये जो सहाबा की जमात है कत्ल हो जाए तो नाम लुआ कोई नहीं रहेगा। ये नहीं होने चाहिए, बल्कि वो दज्जाल कज़्ज़ाब होने चाहिए। फैसला तो यही है ना, ये फैसला करो हमारे हक में। यही दुआ की थी तो नबी के हक में दुआ कबूल होगी। नहीं, नबी ने अपने ही हक में दुआ की थी। नबी ने ये तो दुआ नहीं की कि हम, नबी ने ये तो दुआ नहीं की कि माज़ अल्लाह अगर हम गलती पर हैं तो हमें उनके हाथों कत्ल करवा दे। इस तरह की दुआ तो नहीं की। नहीं, नबी तो सच्चे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मदद के लिए दुआ मांगी है। अबू जहल ने मशरूत दुआ मांगी है कि अगर हम झूठे हैं तो उनकी मदद कर, अगर वो झूठे हमारी मदद कर। देखें, बात को समझें। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने लिए दुआ मांगी है, अपनी मदद मांगी है, अपने लिए मदद मांगी है अल्लाह ताला से। उनके लिए क्या मांगा है कि उनको भी कोई जरूरत न पहुंचे, वो आराम उनके लिए मौत मांगी है, तो फिर उनके लिए मौत मांगी है। बात यही है मोहतरम भाई, कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, दोनों मुकाबले के लिए तैयार हैं। दोनों ने अल्लाह से दुआ की। वो तो एक जाहिल मुर्तद खबीस था अबू जहल, उसने तो फैसला मांग लिया और अपने हिसाब से दुआ किया। ये तो अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा और अपने जो भी उनके मानने वाले थे उनकी सलामती और उनके सरफराजी की दुआ की और उनको बातिल और उनको ज़ेर करने की दुआ की। वही हुआ मुकाबला दोनों का। नहीं होती कि दुआ तो अल्लाह ताला के नबी की सुनी गई। हाँ, यही है ना मेरे भाई। बात यह कि दूसरी तरफ से कोई तैयार ही नहीं है। शक्ल यह है कि भाईजान सुन लीजिए, दूसरी तरफ कोई तैयार ही नहीं है। आप कहते हैं एक तरफा दुआ हो गया, ये कैसे तकाबुल हो सकता है? भाई मिर्जा साहब ने जो दुआ की है ना एक तरफा, मिर्जा साहब ने लिखा है कि ये एक तरफा दुआ है। सनाउल अमृतसरी, तू जो चाहे नीचे लिख दे, फैसला मैंने बता के हाथ में पकड़ा दिया है। ये कुछ नहीं लिखा ना, तरफा नहीं लिखा कुछ भी, आमादा नहीं हुए ना, आमादा नहीं हुए। होते या ना आमादा होते से भाई क्या लिखना चाहिए था उनको नीचे? आप बताएं क्या लिखना चाहिए था? ऐसी दुआ लिखनी चाहिए थी जैसी क्यों ऐसी दुआ लिखनी चाहिए थी? इस बात पे इसको तो वो जहालत कह रहे हैं, वो भी जहालत दिखाते हैं बदले में। ठीक है, जहालत कह रहे हैं तो फिर ये हम नहीं कह सकते। साहब ने यही कहा था कि अपने अल्फाज में, जिस तरह मिर्जा साहब ने लिखा है वो अपने अल्फाज में लिखने ऐसी। कहाँ लिखा है? कहाँ मिर्जा साहब ने कहा था कि अपने अल्फाज में इस तरह की दुआ कर दो? जो कुछ चाहो लिखो नीचे, कहा ना नहीं कहा, जो तुम्हारे चाहो लिख दो, अल्फाज जो चाहे भाई, जो चाहे लिख दो। अगर किसी बंदे ने जो चाहा लिख दिया, आपका इतराज क्यों है इस पर? मुझे इतराज इस बात पे है कि उन्होंने कबूल नहीं किया ना। भाई कबूल करना तो आपकी डिमांड नहीं थी। वो डिमांड तो है, उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से। क्या कर दिया? ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर इस चैलेंज पर वो मुस्तैद हुए कि काजिब, अगर मुस्तैद, ये अलग बात है। ये तो 1903 की बात आप पढ़ रहे हैं। हाँ, वो कब की ये बात है? जो आप पढ़ रहे हैं ना, अगर वो इस चैलेंज पर मुस्तैद हुए, ये तो जाज़े अहमदी की तहरीर है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो 1907 की बात है। मैं तो इसको जब इसकी बात करता हूँ तो आप सीधा वहां चले जाते हैं। वजह इसका जवाब दीजिए ना। भाई इसका तो जवाब हो गया कि इसका जवाब जहालत है। तो ये जहालत है मेरी कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरेगा। अच्छा, गोया के तैयार नहीं हुए इस पे भी। ठीक, इतनी बात ठीक है भाई। ये तो हाँ, ये तो जाहिलाना मुतालबे है ना सारे। तो भाईजान तैयार हुए या नहीं हुए इतना बता दीजिए। जब जाहिलाना मुतालबा है तो तैयार क्या होना इस पे? नहीं हुए तैयार। हाँ ठीक, यानी फिर तीन जो चैलेंज किए थे, तीनों पर भी तैयार नहीं हुए। आगे और सबसे पहले ये तीसरा, और सबसे पहले उस उर्दू मजमून और अरबी कसीदे की ना बात, कसीदे की तो होगी ना बात। हाँ नहीं, वो कसीदे की बात होगी, वो उसको तीसरे में शामिल कर। तो तीन ही बातें भाईजान, एक कसीदे वाली है, मेरी बात सुने, एक पेशगोई की पड़ताल है, एक झूठे के सच्चे की जिंदगी में मरना है। तीन बातें। हाँ, उन्होंने कसीदे वाली बात को नंबर 1 पे रखा कि ये हसर है इस पे, कम से कम इसका तो जवाब दो।
बाद में फिर उन्होंने 5 दिन में, 5 दिन में जवाब दें। जी हाँ, 5 दिन क्यों कौन सा जवाब दें मुश्किल 5 है? दिन में? मैं 1 दिन में लिख दूंगा कसीदा कोई। आप क्या लिख मुश्किल? सकते होंगे, मैं और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी नहीं लिख सकते हैं, हमें अरबी कसीदा लिखने की वो अटकल नहीं है। शायर लिखते हैं ना आप शायर होंगे, आप लिख लेते हो। मुझे शायर बोलना एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता मैं। मतलब कोई मजाक शायर कर ही रहा लिख सकता है ना, आपके जिसका काम आपके है। मर्ज़ई बड़े खुश हो रहे हैं नीचे भाई, आपके मर्ज़ई पीर हूं। अच्छा सनी बात साहब ये है, बात ये बड़े है, खुश हो रहे, कह रहे आमिर भाभी बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया, अमृतसरी बढ़ गया। हाँ, सुन तो लीजिए आमिर भाई, क्या बात है पीर साहब, आमिर भाई जो क्या बड़ा हुआ बात वो तो बाहर ही नहीं निकला, जो बड़ा हुआ वो तो बाहर ही नहीं निकला। सानी साहब ने तो बकायदा पॉइंट बाय उसका- पॉइंट उसके ऊपर बात की है। उसका दरवाजा खटखटाया गया, वो तो बाहर ही नहीं निकला। जिस तरह इंजीनियर बाहर नहीं निकला, इसी तरह वो भी बाहर नहीं निकला। वो तो आप जो जी, मर्जी अगर अफगानी भाई ने लाजमी तौर पे ये देखना है कि दोनों तरफ से कबूल हो, तो फिर अब्दुल हकीम असिस्टेंट प्रोफेसर वो वाली तहरीरें दिखा देते हैं इनको, जहाँ पे ये मिर्जा बात साहब ने भी कबूल किया हुआ और उन्होंने भी किया अमृतसरी हुआ के है। साथ जो बात हो रही है उसकी बात हो रही है, वही हम पेश कर रहे हैं। उन्होंने वो भी मोड़ तोड़ के ना फिर आप ਤੁਹਾਡੇ कहीं और मत्थे बात पा जाते देनी है। वो जब मामला आएगा वो भी सारी तहरीरें देख लेंगे। इस तहरीर वो में भी देख लेंगे। पहले ये तीनों बात बातें होने नहीं दें। मानी, और जो दुआ की गई उसके बदले में भी उन्होंने कोई मुकाबले पर दुआ नहीं की, तो फिर दुआ क्या 4 साल बाद, आपके पास दलील क्या रह जाती है? दुआ 4 साल के बाद की गई और दुआ यक तरफा की गई, और उनको कहा गया कि मैंने ये दुआ करके अल्लाह ताला से फैसला चाहा है, तू जो चाहे इसके नीचे लिख, फैसला खुदा के हाथ में तो है। वो भी अपनी दुआ लिख देते अपने अल्फाज में। भाई वो क्यों यही लिख बात है देते? तो नहीं लिखा उनको तो फिर किसने क्या कहा कि आप हुआ? दुआ लिखें? फिर नहीं ना हुआ ये बात, फिर आप कहते हैं जी क्या? वो उनकी क्या कब्र नहीं पे हुई जाके बात? कहता था, देखो फलाना ये हो गया वो हो गया। क्या? नहीं, मैंने कहा फिर ये दलील ही ना बनती कि अमृतसरी साहब उनके बाद उनकी वफात हुई, ये दलील तो नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने तो कबूल ही नहीं बनती है। उनके कबूल और अदमे कबूल से ये दुआ मशरूत नहीं थी। किया कि सच्चा जो है वो झूठा जो है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाता है, ये भी नहीं कबूल किया चौहान साहब, ना कसीदा लिखना चौहान कबूल साहब, किया, ना कलम से उनकी चौहान पेशगोई साहब। की उन्होंने रद्द किया, ना उन्होंने फिर दुआ की उसके मुकाबले पर, कुछ भी तो नहीं किया। और फाते आप करार दे रहे हैं मौलाना अमृतसरी, तो अकल को हाथ मारे जरा। ठीक होगी बात पूरी। पहली बात तो ये है चौहान साहब कि दुआ की कबूलियत और अदमे कबूलियत वो मशरूत नहीं है। इस दुआ के साथ मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की कबूलियत या अदमे कबूलियत इसकी शर्त नहीं है। वो कबूल करें या मुस्तरद करें, मिर्जा साहब ने खुदा से फैसला चाहा है। आप मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी से करवाना चाहते हैं फैसला खुदा से मिर्जा साहब मांग रहे हैं। अगला मानने का तो खुदा से फैसला होगा ना भाई अगले को मानने का अगला आपने कहा ने मानो कोई इसको। उसकी लिखी ही नहीं कोई, उन्होंने एक सुनिए दुआ ना। की और उनको कहा कि आप भी अब जो चाहे दुआ लिख दें, उन्होंने कोई शोर न लिखी करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगले को कहा नहीं कि तुम दुआ करो। कोई भी काम नहीं किया मुकाबले में, और फाते आप करार दे रहे हैं तो भाई चौहान साहब अगले को कहा था दुआ करो। जी चौहान साहब, जेड़े ताउन के ना जो ताउन के साथ बंदे मर गए थे, चलो, उन्होंने ताउन कबूल से चले किया जाओ, था भाई। मिर्जा साहब के साथ। उनसे पास जाओ, नहीं, उन्होंने कबूल जहाँ किया था बात मिर्जा हो रही है, साहब के उसी की साथ। बात करें। मिर्जा साहब की इधर दुआएं उधर ना थी बात ना, करें। अपनी यक तरफा दुआएं थी, तो वो जो बंदे मर गए तो मैं सच्चा हो गया, भाई, तो जहाँ पे खुद दुआ हाफिज मांग हुसैन रहे हैं और साहब, मर गए हैं, तो ये बात छलांगे ना ठीक होगी। लगाएं। ये जो तहरीर पेश मैं की जा रही छलांगे है ना, नहीं, मैं ऊपर आपकी रहें। जो तावील कर रहे हैं ना, आप जो छलांगे तावील लगाएं। कर रहे हैं, मैं उसका ये जवाब आपका दे रहा अच्छा हूँ। काम होता है, आप छलांगे इधर उधर लगाते हैं, फलाने में ये कहा फलाने- छलांगे जब वो बात होगी, मैं वो कोई सारी कादियानी तहरीर थोड़ी हम हूँ कि पढ़ेंगे। इतनी हमें छलांगे पता लगाऊंगा मैं। यहाँ पे हमने सारी तहरीर पढ़ी है। मौलाना अमृतसरी ने 3 चैलेंज में कोई भी कबूल नहीं किया, फिर दुआ भी नहीं लिखी, तो फाते आप उनको करार दे रहे हैं। अकल से भी कोई काम लेना चाहिए ना, तो दलील नहीं है आपके पास। नहीं तो मिर्जा साहब को क्या किसी ने खत लिखा था कि आप ये ऐसी दुआ एक तरफा मांग लो और उसके ऊपर खड़े हो जाओ? तो फिर आप किसी क्यों ने कह उनको रहे हैं खत कि लिखा था? मिर्जा साहब झूठे थे, वो नहीं, मर गए उनको पहले। उनको तो किसी कह ने रहे हैं फिर उनको आप- किसी ने खत लिखा फिर था। आप इस दुआ का जिक्र ही ना करें। जब
अमृतसरी साहब ने लिखी ही नहीं तो कोई नहीं दुआ नहीं, उसका मेरे मुबारक मेरे तो सवाल फिर का इसका जवाब क्यों जिक्र देना करते कि हैं? क्या फिर सनाउल्लाह इस मृसी दुआ साहब की ने कोई उनको खत वैलिडिटी लिखा था नहीं कि रही, भाई आप ऐसी दुआ खत्म करें? हो गई बात। उन्होंने खुद साख्ता दुआ की है, तो फिर अपनी खुद साख्ता दुआ को साख्ता देखिए। दुआ की थी तो आप क्यों इसको बुनियाद बनाते हैं कि जी देखे मिर्जा साहब ने दुआ की थी और खुद पहले मर गए? फिर क्यों इसको बुनियाद बनाते हैं? मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब की ये दुआ कबूल फरमाई है। हाँ, और आप जो मर्जी कहते रहे, मैं तो कबूल कहता फरमाई हूँ, है। इसके क्या है, हाँ हाँ, जी। कबूल फरमाई है। जब अगले वाला कबूल ही नहीं कर रहा, ना लिख रहा है कुछ, और उसको कबूल फरमा और लिए। अगले वाला नहीं कबूल कर रहा, अकल दुआ से मिर्जा काम साहब ले कर रहे हैं कबूल। मेरा तो ख्याल कबूल है, अल्लाह ताला ने मेरा करनी तो थी या ख्याल सनाउल्लाह है, मृसी रहमतुल्लाह ने तुम्हारे करनी ख्याल थी? की क्या इसमें हैसियत है? जो लिखा हुआ है वो नहीं, हमारे सामने है। अगर इसी मेरा तो रसूल ख्याल के है, मुताबिक मैंने मेरा तो आपको ख्याल कहा है। था पीर साहब कि ये जो नीचे आपके जज्जे को साथ म्यूट करें, फौत हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें लिख रहे हैं, ये जज्जे को ब्लॉक कर दे, म्यूट कर दे। और जो हरामदर्दी चैलेंज उनको कर रहे दिया नीचे ये था, जज्जा। उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो जहालत है, तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया। तो अमृतसरी साहब को आप खाम फाते करार दे रहे हैं। ब्लॉक कर दिया भाई, उनके तो कुछ भी नहीं किया आगे से, ब्लॉक मारे। एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मार दिया कैसर भाई, मार दिया। भाईजान बात इंसाफ की ये है कि जब कबूल ही नहीं किया किसी चीज़ को तो फिर फातह करार देना मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, तुमने जो दुआ की थी उसके पादाश में, ये हम कह सकते हैं, ये एक अलग बात होगी। लेकिन ये दावा दुरुस्त नहीं होगा कि ये किया था तो चले गए और आए नहीं थे, ये नहीं थे। भाई जो शुरूत उन्होंने रखे हुए थे उस शुरूत पे आप उतरे नहीं, और आप आए कि मैं पड़ताल करने के लिए आया हूँ और दूसरे को कह रहे हैं कि भाग गया है। ये बात ठीक नहीं है। इतनी सी बात है, आगे कुछ भी नहीं। ये दावा दूसरा भी 3 स्कैन पेश गए, तीनों के तीनों हाँ 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 हो गए। आ जाइए, आ जाइए बिग स्टार भाई, आपने पहले आके यहाँ रिपोर्टिंग की थी, क्यों की थी भाईजान बताइए? बिग स्टार साहब, भाईजान ये ब्रॉड को बंद करके क्या मिलेगा? आइए, मैंने आपको उठाया, क्यों नहीं आ रहे? चलिए ठीक है, ये लीजिए। कैसे गुजर रहा हूँ बारे में थोड़ी। भाईजान क्या कह रहे हैं आप? किससे बात कर रहे हैं? समझ नहीं आ रही। भाईजान क्या जी, कह रहे अभी हैं आप जो गुफ्तगू भी चल रही थी उस सिलसिले में मैंने बात करना थी, तो मुझे जरा कीजिए। 1 मिनट दीजिए, मैं जरा ड्राइव कर रहा हूँ, तो पहले ये बताइए, सिग्नल आप ठीक है। पहले ये बताइए, ऊपर आके आपने रिपोर्टें मार के नीचे चले गए, वजह? किसने रिपोर्ट मारी साहब? आपने नहीं मारी? नहीं नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, पर बात कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये बदगुमान ना हुआ करे, आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं, मैं अच्छा। पूछ रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे आप पे शक हुआ था। क्या रिपोर्टें मार के नीचे चले गए? मुझे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। ऐसी की बात नहीं, माफ करें, मैंने डबल टैग जरूर किया जब आप कह रहे थे, डबल टैग भाई। करें वो मैंने किया था उस वक्त। जी। ठीक है भाईजान, ठीक है। अच्छा, जी, एक तो गुजारे, एक तो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आपकी चल रही थी, तो मैंने इससे 1-2 चीजें अखज़ की थी, मैं वही बात करना चाह रहा था। पहली आपने बात तो ये आवाज है को- कि ये हाँ जी, आप ठीक मैं हो इस गया। समय वही मैं बता रहा था जी। अब ठीक है, बात कीजिए। तो पहली बात तो यह है, जो कसीदा लिखना शायर का काम होता है, और जो गैर शायर है वो कसीदा नहीं लिख सकता। अगर कोई बंदा शायर है, वो कसीदा लिखता है और वो दूसरे किसी गैर शायर को कहता है मैं अगर कसीदा लिख सकता हूं तो मैं सच्चा हूं, तुम नहीं लिख सकते तो तुम झूठे हो, तो मेरे ख्याल में ये तो कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि शायर और गैर शायर का कोई मुकाबला नहीं है कसीदा लिखने के अंदर। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मिर्जा साहब दुआ कर रहे हैं कि अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो हैं वो फोत हो जाएं, और अगर मैं झूठा हूं तो उनकी जिंदगी में मैं फोत हो जाऊं, इसमें इस कलाम के अंदर ही वो शक पाया जाता है, यानी उनको यकीन नहीं है कि मैं सच्चा हूं। वो खुद कंफ्यूज है इस मामले में, तभी वो ये बात कर रहे हैं ना। तो जो खुद कंफ्यूज है अपने दावे के एतबार से, दावे के बारे में, तो अगर वो फोत हो जाता है
तो वो हारा हुआ है ना, वो जीता कैसे? वो फिर वो खुद एक कंफ्यूज है। बाकी ये कहना कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने ये क्यों नहीं लिखा, अब देखिए, अगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब नीचे ये लिखते हैं यही दुआ कि या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी जिंदगी में भला मिर्जा फौत हो जाए, और अगर मैं झूठा हूं तो मैं उसकी जिंदगी में फौत हो जाऊं, तो फिर तो दोनों का कलाम बराबर हो गया। ये भी शक में आ गया, और नबूवत के मामले में शक में आना जो है ये कुफर की अलामत है, इंसान दूर हो जाता है। उनको यकीन है कि मिर्जा सही लगी, दोबारा से लगाएं, आवाज नहीं ठीक आ रही। जी मैं दोबारा कोशिश करूं, आवाज आ रही है? आप जी जी आवाज आ रही है, आपकी बात हम समझ गए, लेकिन थोड़ी सी बात मैं तो फिर आपको देता हूं। मेरी बात सुनिए। वो तो शक में पड़ गया ना मौलाना, अगर वो शक में पड़ गया तो उनकी अपना अकीदा जो है वो खत्म नबूवत का वो दाव पर लग जाता है। इसलिए उनके लिए बेहतर यही था कि वो कुछ ना लिखते, ये बेहतर था जो उन्होंने जवाब दिया कि ये बिल्कुल जहालत है, तो इसकी जो नबूवत है जहालत है, यही उसका जवाब बनता था जो उन्होंने दिया इस बारे में। जी जी जी। क्योंकि ऐसी दुआ भी करना कि वो अगर मैं सच्चा हूं तो वो सच्चे थे, ये जवाब करना कि अगर मैं सच्चा हूं तो वो मर जाए, या वो अगर मैं झूठा हूं तो मैं मर जाऊं, तो ये कहना भी मेरा ख्याल है कि ये ईमान के मुनाफी है। जी ये मेरा एक गुजारिश थी। भाईजान आपकी बात हो गई? जी जी मेरी मुकम्मल हो गई। जी भाईजान देखें, आपने अच्छी बात की है, एक अकली मतलब एक तखमीना है आपने पेश किया है कि अगर आप जवाब में ये लिख दें कि गोया आपको भी शक हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप देखें बड़े बड़े उलमा मुबाहला की वो दावत देते हैं, क्या उनको शक होता है? क्या उनको शक होता है? खुद उलमा ने इनके कायद को चैलेंज किया है मुबाहले के बारे में, क्या वो इस्लाम और ख़ुद को झूठा समझते थे, उनको शक था? ये तखमीना गलत है भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इससे ये साबित नहीं होता कोई आपको चैलेंज कर रहा है और आप ये समझें उसको अपने आप पर शक है, बल्कि इससे ये होता है कि उसको मुकम्मल यकीन है, इसलिए तो इतना बड़ा दावा कर रहा है। मुबाहला इसलिए किया जाता है कि तरफ़ैन अपने आप को सच्चा समझते हैं, ये कहता है मैं सच्चा, वो कहता है मैं सच्चा, कहा ठीक है आओ अब जो है मुबाहला करते हैं। और मुबाहले में यही होता है कि बद्दुआएं की जाती हैं कि झूठा हलाक और बर्बाद हो जाए, समझ रहे, झूठा हलाक और बर्बाद हो जाए। तो इससे ये अखज़ करना कि अगर कोई ये कहे इस तरह का दावा करे तो उसको अपने आप पर शक है, नहीं 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 ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है भाई। जी मेरे ख्याल में जी जी इस मामले में मौलाना अमृतसरी सनाउल्लाह साहब ने ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया है कि जैसे अमन अजीज़ा फरमा रहे थे कि उधर फिरौन ने जो सॉरी अबू जहल ने जो मक्का में जो दुआ की थी जी जी उसकी कबूल हो गई, जी जी ठीक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और अपने असहाब के लिए और फतह के लिए दुआ की थी, अल्लाह ताला ने वो भी कबूल कर ली। जी 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 नहीं, इनका भी मुनासिबत नहीं बनता। अच्छा वजह इसकी ये है उस्ताद मोहतरम जी जी भाईजान, इसी चीज़ को अगर ले जाए मिर्ज़ा साहब की निशानों के ऊपर, तो जो ताउन के साथ जो बंदे फौत हुए थे, मिर्ज़ा साहब ने कहा देखो जी मैं सच्चा हूँ इसलिए ये वफात पा गए हैं, और मिर्ज़ा साहब ने उनके लिए भी मरने की दुआ की हुई थी, जबकि जो मरने वाले हैं उनमें से किसी ने भी ना दुआ की है ना उसको चैलेंज को कबूल किया हुआ है ना कुछ भी, फिर उसको ये कैसे निशान बनाते हैं? फिर नहीं वो तो जब हमारे सामने आएगी ना उस बात पे तबसरा कर सकते हैं। जब जो कुछ जी मैं सुबह इंशाल्लाह वो रखूंगा, मैं सुबह इंशाल्लाह रखूंगा। फिलहाल जो हमारे सामने है ना, जो जितने भी इक़्तिबास हैं हमने पढ़ ली है, तो उस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी कोई और जगह पे कोई और बात है तो वो तो उसको वैसे ही देखा जाएगा जहाँ जो कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे भाईजान। अब वो ताउन वाला क्या मसला है, क्या कहा है, क्या मतन में होगा, आपको तो याद नहीं है, आप अपने अल्फाजों में उसको बयान करेंगे ना। जब भी कोई चीज़ अपने अल्फाजों में खुलासा बयान किया जा सकता है
ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن جو متن میں بات ہوگی ویسے بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا جب تک آپ اس متن کو نہیں دیکھیں گے. تو مناسب یہی ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے, پیش کر کے اس کو پڑھیں گے. کل آپ اس کو پیش کریں, لیکن اس کے پورے اسٹڈی کریں, دیکھیں اس میں کیا اعتراض بنتا ہے, وہ اعتراض کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہد بھائی؟ اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ. میں صبح سے چوتھی پانچویں بار آیا ہوں آپ کی لائف میں. مجھے لگا شاید آپ ناراض ہیں. کس لیے ناراض ہو؟ وہی جو کل غلطی ہو گئی تھی میرے سے. نہیں, آپ سے کیا غلطی ہوگی, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے بھائی. چلیں پھر بہتر ہے کہ یاد پیر نہیں صاحب ہے. آپ کو نا یہ وہ امام احمد رضا والی بات نہیں تھی, یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ قادیانی ہیں. یہ کب ہوئی ہے بات ہماری؟ کل ہوئی تھی. کل ہوئی تھی, اور یہ بدتمیزی پہ اتر آئے تھے تھوڑی سی. نہ آپ نے کہا تھا کوئی نہیں کریں آپ. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑ دیجئے اس آپ مسئلے کے کو. مزاج سے واقف نہیں ہے نا, پتہ چل جائے گا ان کو. چھوڑ دیجئے, کوئی بات نہیں. وہ شاید کس کے پروڈ پہ ہوا تھا, یاد آ گیا. کہاں ہوئی تھی یہ بات؟ میرے خیال ہے کیسر بھائی کی پروڈ تھی وہ شاید. یہ کیسر بھائی کراتے ہیں اس طرح سے کہ اسکانی کی تھوڑا سا درگت بناؤ, یہ وہ تو یہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں اس کا بدلہ لوں گا نا, آج صبح میں نے بدلہ لے لیا نا سود سمیت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب ایک سوال کرنا ہے کہ اگر ایک بندہ یا میں ہی ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری دعا اللہ نے سننی ہے یا اگلے بندے نے سننی جس کے بارے میں کروں گا؟ اللہ ہی نے سننی ہے. بس پھر مرزا صاحب کی اللہ نے سن لی تھی. ہاں ٹھیک ہے. کیا سن لی تھی؟ بھجن کیا سن لی تھی زاہد بھائی؟ وہی دعا جو ہے کہ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں موت دینا. ہاں, تو وہ اللہ سے دعا کی گئی تھی نا, تو اللہ نے سن لی ان کی دعا. اگر یہ دعا نہیں کرتے تو نہیں مرتے, ابھی تک زندہ ہوتے. ہو سکتا ہے بچ جاتے, کچھ 2 سال اور آگے نکل جاتے. موت تو آنے ہی آنی ہے. بات یہ ہے بس منہ سے مانگ لی نا. بات یہ ہے کہ مباہلے کے زد میں ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ دوسری طرف سے قبول نہیں کیا گیا, یہ میرا کہنا ہے. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے, بس اتنا کہنا ہے میرا. مگر دعا اللہ سے جو ڈائریکٹ کی جاتی ہے نا, اس کا جواب یہ مبالغہ تھا بھی نہیں, یہ مبالغہ تھا بھی نہیں. مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں, مبالغہ نہیں, محض دعا. اسکانی بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا لیکن مجھے ابھی تک بہت سے جو ہیں یہ قادیانی بھائی بتا نہیں پائے. ان کا شجرہ جو ہے احمد رضا قادیانی کا, وہ بھائی آپ نام ٹھیک سے سیکھ لیں. کل بھی آپ کی اسی بات پہ کنفیوژن ہو کے تو سارا کیا تھا. نام ٹھیک سے سیکھ لیں. احمد رضا قادیانی. رضا نہیں ہے بھائی, اس میں مرزا غلام احمد قادیانی. سر وہ مرزا نہیں ہے, اس لیے میں نے صرف مرزا کہہ لیں, صرف مرزا کہہ لیں. نہیں, اپنی ذات ان کی مرزا ہے تو خود کو بچا رہے ہیں. مرزا احمد قادیانی جو ہیں, ان کی کون سی نسل ہے؟ 700 نسل ہوگی, کون سی بہت ساری بولی ہوئی ہے. وہی فیملی شجرا جو بھی ہوتا ہے, ان کے فیملی بلڈ لائن کہاں سے ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. والی ابراڈ نہیں ہے, اس لیے اس طرح کی باتیں یہاں پہ نہ کریں. آپ نے کہیں اور کسی اور براڈ پہ یہ ہنسی ٹھٹھا کریں, گالیاں نکالیں اور ایک دوسرے کو خود گالیاں کھائیں, وہاں جا کے کریں یہ کام. طارق صاحب غصہ نہ کرے, آپ ہی بتا دیں بھائی کو کہ کون سا نسب تھا, کیونکہ مرزا صاحب نے تو بہت سارے لکھے ہوئے ہیں نا. نہیں, یہ فضول بات ہے, اس کا کیا تعلق ہے. مین بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کیا اور اس کے دلائل اس نے کیا پیش کیے ہیں. ہاں, وہ آپ پیش کریں. یہ جو ان کا یہ دعویٰ تھا اور اس کی یہ دلائل تھی, وہ آپ دلائل توڑیں یہاں پہ کہ نہیں جی یہ دلائل, یہ ہنسی ٹھٹھا ہوتا ہے کہ یہ فلانا کون تھا. مرزا سنی بھائی,
मिर्ज़ा सुन्नी भाई, पहली बात तो ये है तारक भाई, उन्होंने अपनी नस्ल को इमाम मेहदी के साथ मंसूब किया हुआ है। आप ये ना कहें कि उसके दावा जात देखने चाहिए, तो अगर दावा जात देखने हैं तो इमाम मेहदी के साथ क्या उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि मैं पहले कहा कि मैं बनी फारस में से हूँ क्योंकि मेहदी उसमें आना